Hello students, how are you? So students, today we will discuss about exercise 1.3 from the chapter number 1, that is real number. Students, up to this exercise we have covered Euclid division lemma, the formula of HCF and LCM, and in the last part of this video I have told you one theorem, that is if a is an integer and p is a prime number, and if p divides a square, then p will also divide a. After that I told you how to prove an irrational number with the help of contradiction method. Okay, so I told you how to prove root 2 is an irrational number. Okay, so after that this exercise comes, that is 1.3. So we will begin from the question number 1, that is prove that root 5 is irrational number. Okay, I told you how to prove root 2. Same method we will apply in this question also. Okay, so let's begin. Because we have to prove this is an irrational number, so what we will assume? We will assume it as a rational number. So in proof you will assume that let under root t is a rational number. Okay, okay, and if under root 5 we have assumed it is a rational number, then it can also be represented in p by q form. Okay, so root 5 can be written as p by q, and in bracket you will write p and q are integers and co-prime, and q is not equal to 0. Okay, after that what we will do? We will do the squaring of both two sides. Okay, so when you will do the squaring of these two sides, we will get under root 5 square equal to p square upon q square. Okay, so after solving it, what we will get? We will get 5 equal to p square upon q square. Okay, now multiply this q square in this side, so we will get 5 q square equal to p square. Same method, whatever method we have used for under root 2, same we will apply for under root 5 also, under root 3 also, under root 7 also. Okay, procedure is same, just the number is different. Okay, now afterwards note down this thing. Afterwards I am writing here this side. Okay, now what I am going to do, I am dividing this 5 in this side, so q square will be equal to p square by 5. Okay, same method. In root 2 it was came q square is equal to p square by 2. In root 5 it came q square equal to p square by 5. सेम प्रोसीजर है बिल्कुल. अब चूंकि p इंटीजर था और p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 is here. So I told you the theorem, if p is a prime number and a is an integer, and if p divides a square, then p will also divide a. So after that we will write, because 5 divides p square, hence 5 will divide p also. Okay, so if 5 will divide p also, so it means that 5 is a factor of p. So we can write, hence 5 is a factor of p. Okay, and if 5 is a factor of p, so we can write 5 equal to
sorry, p equal to 5m, where m is any integer. Okay, m is any integer, because if 5 is a multiple of 5 or 5 is a factor of 5, sorry, p is a factor of, sorry, 5 is a factor of p, then the value of p can be anything. It can be 5 also, it can be 10 also, it can be 15 also, it can be 20 also. So because we don't know, so we have written 5 into m, where m is any integer. When you will take m is equal to 1, then p will be 5. When you will take m equal to 2, p will be 10. Okay, so students, this is our equation number 1. So in equation number 1, we will put the value of p. Okay, so here I will write from equation number 1. So it comes q square equal to p square by 5. Okay, now q square equal to, I will put the value of p here. So 5 m square upon 5. So q square equal to 25 m square by 5. Okay, I think it is clear to all of you. Please note down this thing. Now children, I am going to erase this part because I think it is clear. So I think you have noted down this part, so I am going to erase it. Okay, I am going to erase this question also because you have noted down a question. It was question number 1. Okay, we are solving the question number 1. Okay, now after this I am writing here, so q square will be equal to 5 m square. Okay, now divide 5 this side, so q square upon 5 will be m square. Now again same statement, equation number 2. Sorry, don't do equation number 2 here, afterwards we will do. Now students, see, whatever steps we have followed for phi, same we will apply it for q also. Okay, so again q was a integer and q square is divided by 5 and 5 is a prime number. So if, again same line we will write, because 5 divides q square. See, q square is divided by 5 now. So we can say, because q square is divided by 5, hence 5 will also divide q. Okay, whatever steps we have followed for p, same steps we will do for q also. So again 5 is a factor of q. So again q can be written as 5n, where n is any integer. Okay, okay, now see, it is equation number 2. Now put this value of q in equation number 2. So from equation number 2, I can write q square upon 5 is equal to m square, or when we will put the value of q here, we will get, I am writing here students. Okay, I think you have noted down this part also. Now see, when I will put the value of q here, so I will get 5n square upon 5 is equal to m square. Now 25n square upon 5 is equal to m square, or 5n square equal to m square. Okay, now we will stop our calculation up to here only. Now students, when we have started, I have told you, whenever you have to prove any irrational number, first you have to consider it as a rational number. So root 5 was represented as p by q form.
where P and Q are integer and co-prime. Co-prime, I told you in the last part also, co-primes are those pair of numbers which have only one common factor and that is 1, means their HCF is 1 always. उन दोनों के को प्राइम नंबर के बीच का जो HCF होगा वो केवल 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा. इसीलिए कहा जाता है कि को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर केवल एक ही होता है एंड दैट इज 1. एक भी होता है और वो क्या होता है, 1 होता है. ठीक है. लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो 5 जो था वो P का भी फैक्टर आया एंड 5 जो है वो Q का भी फैक्टर आया. So you will write because 5 is a factor of P and Q both. ठीक है. P and Q both. तो अगर 5 दोनों का फैक्टर आ गया इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर एक नहीं आया, 2 आ गया. और अगर 2 फैक्टर आ गया तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने माना था कि वो को प्राइम है और अगर को प्राइम होते तो HCF 1 आता और कॉमन फैक्टर एक ही होता. लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना आया है, 2. एक 1 तो है ही और 5 भी आ गया. इसका मतलब आर एजम्पशन वाज रॉन्ग. आर एजम्पशन was wrong, hence root 5 is irrational. Okay, so student, whatever steps we will apply for under root 2, same we have applied for under root 5. Okay, again if under root 3 will come, then again same procedure you will follow. Under root 7 will come, again same procedure you will follow. Means if you know how to prove under root 2, you can prove any type of irrational number. Okay, so this is the method. I told you it always comes in the board examination and I am telling you root 2, root 3, root 5 or root 7. Out of these 4, one question definitely will come in your board examination of 3 marks. Okay, so please note down these things. Now second question of your exercise 1.3. Second question. Prove that three plus 2 root 5 is an irrational number. Okay, this is the second question of your exercise 1.3. Okay, again same method. You by seeing this you can say it is an irrational number because the sum of rational and irrational is always irrational. Okay, now students, अगेन सेम स्टेप वी विल फॉलो जैसे हमने रूट 5 रूट 2 के लिए किया था वैसे ही इस क्वेश्चन के लिए करेंगे. अगर आपको इरेशनल प्रूव करना है तो फर्स्ट यू विल एज्यूम इट एज अ रेशनल नंबर. सो अगेन आई एम कंसिडरिंग इट लेट 3 plus 2 root 5 is rational number. Okay, rational number. So if it is a rational number, it can be represented in P by Q form. So 3 plus 2 root 5 can be represented as P by Q form.
ओके, और आप ब्रैकेट में वही चीज सेम लिखोगे, मैं बार बार वही लिख दे रहा हूँ वैसे में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, अब वो उतना लंबा वाला स्टेप नहीं करना है इसमें, अब इसका स्टेप बहुत छोटा है। अब आप ये जानते हो ना कि √2, √3, √5 इरेशनल होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। अब उतना लंबा हम इसके लिए प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हमें को ऑलरेडी पता है। अगर √2, √3 ऐसे क्वेश्चन सेपरेट आता है तब आप वो पूरा स्टेप फॉलो करोगे, लेकिन मान लो आपको पास कुछ ऐसा आता है तब उसके लिए आपको पूरा स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 3 को उस साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2√5 इज इक्वल टू P/Q माइनस 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, जैसे एलसीएम लेते हो आप वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, P and Q, it is a numerator, it is a denominator, after that minus sign, then 3। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा क्योंकि 3 के नीचे क्या होगा, 1 होगा। मान लो मैं इसको ऐसे कर दिया, 3/1 लिख सकता हूँ ना इसको, तो Q और 1 का जो एलसीएम आएगा वो Q आएगा, ठीक है। तो 2√5 इज इक्वल टू LCM will be Q and here P minus 3Q will be left. Okay. Now again √5 is equal to P minus 3Q upon 2. I have transferred this 2 to this side. डिवाइड कर दिया मैंने इस 2 को इधर, ठीक है। नोट कर लो इसको आप लोग। पहले इसको मान लिया रेशनल, फिर इस 3 को उस साइड ले गया क्योंकि इसके पास रूट नहीं था इसलिए इसको ले गया। आपको अब ये कहोगे सर आपने इसको क्यों नहीं ट्रांसफर किया, क्योंकि यहाँ पे रूट था इसलिए मैंने इसको ट्रांसफर नहीं किया है, मैंने 3 को इधर ट्रांसफर किया है और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया है। अब देखो आप, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो P एक इंटीजर था कि नहीं, और सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। Q भी इंटीजर था और Q में 3 का मल्टीप्लाई है तो वो भी इंटीजर ही होगा। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास 2 इंटीजर है, जैसे ये P भी इंटीजर है और 3Q भी इंटीजर है, मान लो आपके पास एक नंबर 7 है और एक नंबर 6 है और इन दोनों में माइनस का साइन है, तो क्या आएगा 1, ये भी इंटीजर होगा कि नहीं, ये भी होगा इंटीजर। और जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं, ठीक है। जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा 7th या 8th क्लास में, ठीक है। तो अब देखो P माइनस 3Q जो है ये इंटीजर भी है और रेशनल भी है और 2 भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, √5 इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2। ये P माइनस 3Q अपॉन 2 हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, ये तो पूरा इंटीजर होगा। अगर पूरा इंटीजर है तो वो रेशनल नंबर भी होगा, आप चेक कर लेना किसी भी नंबर के लिए। और 2 एक इंटीजर है ही, और 2 इंटीजर भी है और 2 रेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो राइट हैंड पार्ट है वो क्या है, एक तरह का रेशनल नंबर है। ये वाला जो पार्ट है हमारा ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, आपको पता है ना कि √5 क्या होता है, इर्रेशनल। क्या होता है, इर्रेशनल। तो एक बात बताओ, क्या एक रेशनल और क्या एक इर्रेशनल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, नेवर। तो आप यहाँ इंडिकेट कर दोगे, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो जैसे मैंने लिखा है LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। लेकिन LHS जो है हमारा वो एक इरेशनल नंबर है और जो हमारा RHS है वो रेशनल नंबर है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हमने जो माना था वो गलत हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि हमने जो माना था उसके जस्ट अपोजिट आया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
आवर स्टेटमेंट, ठीक है, बिकॉज LHS इज कैन नॉट बी इक्वल टू RHS इन दिस केस, बिकॉज LHS क्या था हमारा, ये चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो, LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर LHS हमारा इरेशनल है और RHS हमारा रेशनल है, तो LHS और RHS इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमने माना था वो गलत हो गया, ठीक है। हमने क्या माना था कि 3 + √2√5 वॉज रेशनल, तो ये हमारा स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि एक साइड रेशनल आ गया और एक साइड इरेशनल आ गया। इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर स्टेटमेंट एंड LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस 3 + 2√5 is an irrational number, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हुआ। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो भी नंबर दिया है उसको मान लो रेशनल है, अगर रेशनल है तो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें से रेशनल पार्ट होगा उसको आप एक साइड कर लेना और इरेशनल वाले को एक साइड रहने देना। वही चीज मैंने किया, 3 को पहले इस साइड लिया, इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, फिर देखा मैंने कि एक साइड √5 आ गया और एक साइड p - 3q/2 आ गया। ये वाला पार्ट रेशनल है और ये वाला पार्ट इरेशनल है, और हमेशा एक इक्वेशन में LHS और RHS इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो पूरा गलत था, ठीक है। इसका मतलब हमने माना था रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, इरेशनल। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हो। मान लो यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहाँ पे माइनस होता, 3 - 2√5 होता, तब भी वही चीज करते, इसको p/q मान लेते, q को 3 को इधर ले जाते, 2 से डिवाइड करते, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, फिर देखते एक साइड रेशनल आता और एक साइड इरेशनल आता। तो सेम क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप ये वाला मेथड अप्लाई करना, बस इतना ही करना है। अब आप √5 को प्रूव करने मत लग जाना, √5 को अलग से प्रूव तभी करते हैं जब वो केवल अकेला आता है, जैसे √5 आ गया, √2 आ गया, तब वो उतना लंबा स्टेप हम लोग करेंगे। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को। ये दूसरा खुद पार्ट था। आप इसके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हो चिल्ड्रन। एग्जाम्पल मैंने करा भी दिया है, √2 करा दिया है, √3 भी बताया ही था आपको, और ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो समझ के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सारे नंबर को इरेशनली प्रूव करना है। जैसा पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो तीसरे का मैं पहला पार्ट बता रहा हूं कि हमें क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट, सी पीटी मतलब प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो सेम चीज अगेन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। सो अगेन 1/√2 इज इक्वल टू p/q। अब आप इसके बाद आप लिख लेना, ठीक है, जो मैं बार बार लिख रहा था कि p एंड q आर को प्राइम, और आप लिख लेना, या तो आप मैं लिख ही दे रहा हूं, वेयर p and q are integers and q cannot be 0। ये होता है रेशनल नंबर का डेफिनेशन। अब सेम चीज करना है स्टूडेंट आपको। देखो अब यहाँ 1/√2 है ना, अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो q = √2p आएगा। अब आप p को इस साइड कर दो तो क्या आ जाएगा, q/p = √2।
ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अगर 1/2 रेशनल है, अगर 1/2 हमारा रेशनल नंबर है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो क्या 2/1 भी रेशनल नहीं होगा? वो भी रेशनल होगा, ठीक है। तो सेम चीज p/q रेशनल था ना, p/q रेशनल था तो q/p भी क्या होगा? रेशनल ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखना है आपको, तो q/p इज इक्वल टू √2। LHS क्या आया हमारा? LHS इज रेशनल नंबर एंड RHS इज इरेशनल नंबर। आपको पता है कि √2 इरेशनल होता है, और रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS इन दिस केस। उसके बाद सेम चीज, हेंस आवर assumption वाज रॉन्ग। Hence 1/√2 is irrational, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। अब इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप खुद से कर लेना, क्योंकि मेथड बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आप कर ना पाओ। अगर आपने वीडियोस देखा है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, और ये एक्सरसाइज 1.3 आपकी हो गई कंप्लीट। इसके पहले की जो एग्जांपल्स है, एक एग्जांपल बचा हुआ है, वो भी आप अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, हमेशा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है और आएगा, ठीक है। तो नहीं करते हैं, मैथ में समझते हैं। तो आप सारे स्टेप्स को समझिए, रीड करिए, अपने से सॉल्व करिए, ठीक है। आपको सब समझ में आएगा। एक टॉपिक छोटा सा बचा है इस चैप्टर में, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो आपने पढ़ा भी है 9th में, उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू हाउ टू find a given expression is terminating or non-terminating, and after how many decimal places a fraction can be ended or terminated. So okay, whatever part I told you in this video, understand that, solve the question and understand the concept carefully. Okay, so till then, have a nice day, take care of your health, and good night, good morning, whatever you want. Okay, so till then, have a nice day. Thank you, students.